Assalamu alaikum, sir. I'm Muskan Asif and my ID is CS191052 and I'm from section 3A. And my project is, and my group members are these guys: Jahanzeb Javed, Azad Mahmood, Muhammad Salman, and Nilesh. Sir, basically, our project is a hotel management system. I'll first of all show you the demo of the project. So, let me run the project. Okay, so when we'll run the project, it will ask us to sign in, to log in, to sign up, or to exit. So let's suppose, first of all, let us sign up. Let's create an account. Okay, so it's asking the username. I'm going to enter my name, Muskan, and it's asking for the password. I'll say Asif. Now my account is created. Now I have to log in. I'll press 1. As you can see, now I am allowed to enter the restaurant because I have an ID to log in. Okay, now I'll press any key to run. Okay, we have in our main menu, we have 5 options. Number one is to place order, then to search order, view all previous orders, then contact us and exit. So let's one by one, let me show you all these options. So let me press 1 first. Now I have to place order. So for place order, let's suppose I want to choose number 4, and then I have to give, I want one number 4, that is, I guess, chicken nihari, and I want one. So it will say that you want anything else. If I'll say no, so it will further execute. If I'll say yes, so it will again give the menu. So let me say yes first. And let's suppose I need biryani, that's number 7, and I've said that 2 biryanis, and no. So it is going to ask the ID. We have to provide it an ID so that it can create, so we have to provide the ID so that it can tell us the actual order details whenever we'll search for our order. Let me give it 108, and let me give my name again. Now it is asking us to take away or to delivery or to dine in. Let's suppose I have to do it. Number 1, take away. Now my current amount is 610 and I have to give it amount. Let's suppose I have entered 500 and enter. The amount is less, so it's not accepting the amount. So we have to give the exact amount or more than that. So let's suppose I've given 700 rupees. Okay, over here you can say, you can see that what it is actually returning us. It is returning the 10 notes, it's returning 4. The 50 notes is returning 5. That's altogether 90, means 700 minus 90, that is our total bill. So it is returning. Okay, let's go to the main menu again and show you the further details. Let's suppose I have to search for the order. Where's my order? So I'll go to search, and it's asking me the ID. So I have given the ID 108, right? So my ID is Muskan. My total amount was 610 and my detail was takeaway. So for viewing all the previous orders, I'm going to search number 3. Sorry, number 3. So it is actually telling all the names of the see, this order I've already, this order I've just now placed. तो ये यहाँ पर ही आ रहा है. Okay, now let's return to the main menu, and for contact us, you can see that this is showing like names and ID of our group members. So these are the names and ID, so it's showing that. And then if we'll say exit, sorry, if we'll say exit, so the program is finished. Now I will further ask my group members to ahead explain the code of the program. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Jahanzeb Javed and my core project is
फूड मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में मैं लॉगिन सिस्टम और साइन अप सिस्टम में एक्सप्लेन करूँगा विद कोड एंड डेमो। तो आ जाएं, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि कोड कैसे रन कर रहा है। सो बेसिकली ये कोड है। ये रहा कोड, यहाँ से कोड एग्जीक्यूट स्टार्ट कर देता है। जो उसका जो फर्स्ट लाइन जो है जल साइन अप, ये साइन अप करके ये हमें फंक्शन कॉल कर रहा है ये, जो कि हमें साइन अप पे लेके चले जाएगा। जैसे ही साइन अप पे लेके जाएगा, इसकी आउटपुट स्क्रीन इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से। मतलब जैसी कोड जो होगा, जो फर्स्ट टाइम जब रन हो रहा होगा, तो उसकी जो स्क्रीन सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन जो होगी वो इस तरीके से दिखेगी, जिसमें वो यूज़र से पूछ रहा है कि आप लॉगिन करें, साइन अप करें या एग्जिट करें। तो ये सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा। तो आगे आगे चलते हम चेक करते हैं कि साइन अप कोड क्या कर रहा है। अच्छा, ये उसने वहां से डायरेक्ट जंप करवाया साइन अप पे, और यहाँ से हम लोग का ये साइन अप का कोड स्टार्ट हो चुका है। अब ये सारा प्रिंट मैसेज है जो मैं आपको शो कर चुका हूँ। मैं ये रहा, ये सारा प्रिंट, ये यही सारा प्रिंट मैसेज कर रहा है ये। आगे चलते हैं। फिर ये यूज़र से इनपुट मांग रहा है कि यूज़र या पे 1 पुट करें लॉगिन के लिए, या 2 पुट करें साइन अप के लिए। यानी यूज़र को अगर साइन अप करना है विद न्यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो वो 2 पुट करेगा, और 3 से मेन एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। और अगर यूज़र इसके अलावा कोई और नंबर अगर पुट अगर करेगा, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, और वो फिर एक लूप में दोबारा रन करेगा ये। फिर ये दोबारा सवाल पूछेगा, जब तक पूछेगा जब तक यूज़र 1 2 या 3 पुट ना कर दे। उसके अलावा कोई भी नंबर अगर यूज़र पुट करेगा, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो लेट सपोज सबसे पहले हम साइन अप चेक कर लेते हैं कि यूज़र अगर 2 प्रेस करेगा, तो वो डायरेक्ट साइन अप में जाएगा। ये एक और फंक्शन है। अब ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही 2 प्रेस करेगा साइन अप स्टार्ट हो जाएगा, और साइन अप जो होगा वो इस तरीके से दिखेगा, उसका आउटपुट ये रहा, ये ये लॉगिन है। मैं इसका कोड मैं दिखा देता हूँ साइन अप का, पहले आप कोड देख लें। पहले यूज़र से ये मांग रहा है कि आप अपना यूज़र नेम पुट करें, और ये इसका इनपुट है। ये इनपुट डालना है यहाँ पे यूज़र को। फिर यूज़र से बोलेगा पासवर्ड डालें, मतलब पासवर्ड पहले प्रिंट करेगा, फिर पासवर्ड यूज़र इनपुट करेगा। उसके बाद जब यूज़र नेम जो डालेगा, हम उसकी लेंथ कैलकुलेट हम करेंगे। तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे लेंथ यहाँ पे T1 पे स्टोर करवाएगा, और और ये बाद में S को बार बार एक काउंट आगे, मतलब इंडेक्स को आगे बढ़ाता जाएगा। और जो है ये काउंटर है, ये काउंटर की तरह वर्क कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि अगर T1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नल, अगर इट्स नॉट इक्वल टू नल, तो ये लूप में चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखें। जैसे कि जहाज़ेब, मैंने अपना यूज़र नेम मैंने डाला जहाज़ेब, तो जब तक मेरा पूरा नाम, जब तक ये इनपुट ना कर लेना, स्टोर ना कर ले कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और मेरे कैरेक्टर के एंड में नल आएगा, तब तक ये मेरा चलता रहेगा। जैसे ही नल आएगा जैसे ही नल आएगा, तो ये एग्जिट कर देगा। तो ये साइन अप लेंथ है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने लेंथ निकाला है कि इसमें लेंथ कितना स्टोर हो रहा है। उसके बाद फाइलिंग आती है। मतलब अब हम लोग साइन अप हम कर रहे हैं, तो उस जो यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो हम लोग फाइलिंग यूज़ कर रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए। तो
हमने यहाँ पे फाइल ओपन करवाया और फिर हम लोग को फाइल में राइट करना है हम लोग को तो ये हम लोग ने यहाँ पे फाइल का राइट हम लोग ने करवाया और साइन अप में जो हम लोग ने यूज़र नेम जो डाला था वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, उसका एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग जो यूज़र नेम जो होगा वो यहाँ पे जो प्रोग्राम जो होगा जो यूज़र नेम को यहाँ पे स्टोर करवा देगा फाइलिंग में विद कॉमा। दिखाता हूँ मैं क्या हो रहा है। ये देखें, अब इसकी पहली वैल्यू देखें जहाँ से मैंने किया है यूज़र नेम, लेकिन प्रोग्राम साथ में कॉमा डाल लें ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके यूज़र नेम में और ये पासवर्ड में। अब पासवर्ड का इसके बाद स्टार्ट होता है, अब मैं वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये रहा पासवर्ड का पासवर्ड में भी एग्जैक्टली वही काम हो रहा है जो हम लोगों ने यूज़र नेम में हम लोगों ने किया है। वो भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को स्टोर करवाएगा। काउंटर यहाँ पर चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक नल वैल्यू ना आ जाए। नल जैसे ही हम लोग लेंथ इसकी कैलकुलेट कर ली और ये फाइलिंग को ओपन कर रहा है, नहीं यहाँ हाँ फाइलिंग को यहाँ पे राइट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे एग्जिक कॉल कर रही है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रही है, मतलब प्रिंटिंग करवा रहे हैं और फिर उसके बाद अब हमने फाइल तो ओपन करी है तो हमें फाइल क्लोज भी तो करनी है। तो ये फाइलिंग क्लोज यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ पे साइन अप का फंक्शन एंड होता है। तो बेसिकली मैं इसका डेमो दिखाता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद डेमो दिखाता हूँ, लॉगिन के बाद पूरा एक साथ में एक डेमो दिखाऊंगा मैं। तो ये हो गया साइन अप। साइन अप कैसे कि यूज़र नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं और फिर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड एक टेक्स्ट फाइल में सेव हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि लॉगिन कैसे हो रहा है। मैं साइन अप वाले कोड में आ चुका हूँ दोबारा इसी में ही। हमने पहले देखा था कि यूज़र ने 2 पुट किया था तो हम लोगों ने साइन अप स्टार्ट कर दिया था। अगर लेट्स सपोज अगर यूज़र अगर 1 पुट करता तो हम लॉगिन में चले जाएंगे और इसका लॉगिन का कोड ऊपर। ये रहा, यहाँ से लॉगिन का कोड स्टार्ट होता है। जैसे ही लॉगिन का कोड स्टार्ट होगा ये इसका ये आएगा लॉगिन। इसने हमें यूज़र नेम मांगा, मैंने यूज़र नेम मैंने डाला, इसने हमें पासवर्ड मांगा और हमने पासवर्ड डाला। ये भी देखते हैं ये भी कैसे काम करता है अच्छा, ये तो यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। फिर यूज़र नेम का जो एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं और फिर हम लोग ने इनपुट ले रहे हैं हम लोग। फिर इसी तरीके से पासवर्ड का मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, पासवर्ड का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं और फिर यूज़र नेम और यूज़र से हम लोग इनपुट ले रहे हैं। फिर हम लोग वही काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने साइन अप में किया। क्या लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, जो यूज़र ने अपना यूज़र नेम डाला और यूज़र ने जो पासवर्ड डाला उसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग फाइलिंग से हम कंपेयर करा सकें कि वैल्यू सही डाली है या नहीं। ये बिल्कुल वही चीज़ हो रही है जो मैंने साइन अप में दिखाया है कि ये लूप चलता रहेगा, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और ये हम लोग ने यहाँ पे लेंथ हम लोग ने चेक करवा रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है यूज़र की। और एग्जैक्टली सेम चीज़ ये पासवर्ड के लिए भी है। फिर यहाँ से आते हैं फाइल। हम लोग ने फाइल ओपन करवाया, हम लोग ने राइट करने के लिए 15 यूज़ किया था, रीड करने के लिए हम लोग 14 यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लोग ने यहाँ पे फाइलिंग यूज़ करी और फिर हमने फाइल को हमने अब क्लोज भी तो करना है तो हमें यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। उसके बाद आ जाए यहाँ पे
चेकिंग यूज़र नेम, वही जो मैंने बोला था कि यूज़र का जो नेम जो होगा वो हम लोग चेक करेंगे फाइलिंग के थ्रू, जो फाइल में जो उसका यूज़र नेम सेव हुआ है, अगर सेव नहीं हुआ है तो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये रहा, हम यहाँ पे यूज़र नेम को हम चेक करवा रहे हैं यहाँ पे, ये भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करे। अब देखिए चेक कैसे करेगा ये चेक कैसे करेगा, लेट सपोज हम लोग ने यूज़र नेम डाला जहांजेब, तो ये जहांजेब डालेगा, अगर जैसे यहाँ पर इस तरफ जैसी कॉमा आएगा तो ये करेक्ट यूज़र नेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेट सपोज अगर यहाँ पे नल आ जाता है, यहाँ पे अगर कॉमा अगर नहीं होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नल है, तो अगर नल हो जाएगा तो ब्रेक कर देगा, तो जब ब्रेक करेगा तो ये फिर से ये चीज़ रन करेगा कि एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और अगर और ये वाली लाइन जो कर रही है ये कर रही है कि लेट सपोज अगर मैंने जेस डाला अपना यूज़र नेम, तो और पासवर्ड मैंने 1 2, तो वो कर क्या रहा है, पहले पहले यूज़र नेम चेक करेगा कि वो पहले कंपेयर कराएगा जे जे ए, जैसे ही वो चेक करेगा भाई यहाँ पे वाई है एच नहीं है, तो वो लाइन नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, मतलब वो कोड यहाँ से रीड करेगा, रीड करते करते जैसे ही वो चेक करेगा भाई यूज़र ने तो वाई डाला एच नहीं है, तो वो एंटर वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, फिर वो ये वाली लाइन रीड करेगा। वो जैसे ही वो लाइन रीड करेगा, इसका मैं इसका वो दिखा देता हूँ आपको कि ये नेक्स्ट लाइन में जा कैसे रहा है। ये रहा, ये रहा नेक्स्ट लाइन। अगर नेक्स्ट लाइन अगर मिल जाती है फिर वो हमें पासवर्ड के लिए हमें पूछेगा, और अगर नहीं मिलती तो वो अगेन अगेन 3 कर क्या रहे, ये रहा, ये रहा अगेन 3 यूजर नेम और पासवर्ड को दोबारा लोड करवा रहे, उसका एड्रेस लोड करवा रहे। तो हम ये यहाँ पर थे तो हम लोग ने देख लिया कि वो अगर नहीं, ये तो पासवर्ड है। ये रहा, अगर कॉमा आएगा तो यूज़र नेम करेक्ट हो जाएगा, अगर नल होगा तो ब्रेक कर देगा, और अगर यूज़र नेम अगर नेक्स्ट लाइन पर होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे एंटर करवा देगा। और ये लूप है, और ये बार बार ये लूप के थ्रू यूंगरे चल रही है। जैसे ही यूज़र नेम करेक्ट होगा तो ये वाली लाइन चलेगी, जैसे ही करेक्ट होगा तो पासवर्ड भी तो चेक करेगा, तो पासवर्ड के लिए भी एग्जैक्टली सेम यही प्रोसीजर यूज़ हो रहा है, सेम यही स्टेप यूज़ हो रहा है। पासवर्ड को भी इसी तरीके से चेक करेगा। पासवर्ड में अब यूज़र नेम में तो हम लोग ने कॉमा यूज़ किया था, पासवर्ड में हम लोग नल यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग कि नल आएगा तो इसका मतलब इट्स अ करेक्ट पासवर्ड, अगर नहीं होगा नल एंटर, सॉरी एंटर नल ये है, तो ब्रेक कर देगा। अगर नल हुआ तो वो ब्रेक कर देगा, अगर एंटर हुआ तो वो करेक्ट और आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट यूज़र नेम करेक्ट पासवर्ड, और फिर यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं। ब्रेक का ये रहा, जो हम लोग ने ब्रेक यहाँ पे जो ऊपर जो देखा था ब्रेक का, वो ब्रेक ये रहा यहाँ पर है ब्रेक का। बेसिकली ये इनवैलिड शो करेगा। मैंने जैसे कि बोला था कि अगर हमारे पास अगर नल अगर वो रीड करता है नल, तो वो ब्रेक कर देगा, और फिर हम लोग को यहाँ इस वाले यहाँ पर आएगा और हमें शो करेगा कि भाई यूज़र ने गलत इनपुट और पासवर्ड डाला है। अगर सही होगा तो वो करेक्ट और आ जाएगा, और ये जे आर में हमें रिटर्न करवा देगा इस चीज़ को। कहाँ पे, ऊपर बिल्कुल जहाँ से हम लोगों ने कोड स्टार्ट किया था, ये रहा। यहाँ पे V1 में यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है 1। अब ये चेक कर रहा है कि ब्रांच इज इक्वल टू 1, तो ये चेक करेगा कि वेलकम स्क्रीन आ जाएगी।
मैं इसका कोड रन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। सिर्फ ये वाला पार्ट, लॉगिन और साइन अप वाला। अच्छा, ये रहा मेन कोड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नया यूज़र आए, तो लेट सपोज हम साइन अप से स्टार्ट करते हैं। हमने साइन अप में 2 डाला। अब ये यूज़र से मांग रहा है यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम। लेट सपोज मैं सर आपका नाम यूज़ कर लेता हूँ मैं, सर जाहिद। मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मैं डाल देता हूँ ABC। मैंने कर दिया एंटर। अब आपका जो यूज़र नेम जो है और पासवर्ड वो स्टोर हो चुका है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, जाहिद आपका नाम आ चुका है और ABC आपका पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब हम लोग लॉग इन करते हैं उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से। ये मैंने एंटर किया, पासवर्ड है ABC। जैसे ही हमने एंटर किया हमारे पास ये आ गया वेलकम, वेलकम स्क्रीन, जो हम लोगों ने जैसे वहाँ पे कोड में देखा था। ये रहा, ये यहाँ से वेलकम स्क्रीन का कोड स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ माई पार्ट फॉर लॉग इन एंड साइन अप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गिलमान है। ये प्लेस ऑर्डर जो है ये मेरे हिस्से में आया है। ये काम मैंने किया है। तो इसको सबसे पहले हम इसको चला के देखेंगे किस तरीके चलेगा। या हमने वन प्लेस ऑर्डर पे गए, फिर हम हमारा ऑर्डर सेलेक्ट किया 1, उसके बाद उसकी क्वांटिटी डाली 2, उसके बाद हमने बोला कि नहीं हमें और कुछ ऑर्डर नहीं करना, हमने वाई दबा दिया। एन दबाना था नो के लिए, मैंने गलती से वाई दबा दिया है। तो अब हम एक और दफ़ा ऑर्डर कर देते हैं। इस बार हम आइटम कोड डालेंगे 2, यानी हमें चिकन कढ़ाई चाहिए। क्वांटिटी डाली हमने 1 और इस बार हमने एन डाला, मींस अब वो ऑर्डर मज़ीद नहीं लेगा। और सामने अब हमें अपनी आईडी बतानी है। 10 हमारी आईडी है और नाम हमारा रिलमान। टेक अवे है, हमारी अमाउंट है। अब हम इसमें अमाउंट इस तरीके डालेंगे, 1400 डाल देते हैं और बस इस तरीके से ये जो मेरा हिस्सा था वो हो गया रन। अच्छा, अब हम यहाँ गए हैं, हमारे मेन्यू किस तरीके से प्रिंट हुआ, उसके बाद काम किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ इस सेगमेंट को ले लें, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि LI $VO04, ये क्या है। ये सबसे पहले तो यूज़र से एक नंबर पूछेगा, मतलब कुछ इनपुट लेगा। इनपुट लेने के लिए इनपुट ले रहा है और उसके बाद जो S4VI जो है ना, ये कमांड है जो स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। LI$SV104 ये कमांड है, ये प्रिंट स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद जो अगली लाइन में लिखा हुआ है LA$A0 मेन्यू, ये बेसिकली ये स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। मतलब प्रिंटिंग वही बात है कि ये भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। जो मेन्यू हमने ऊपर लिखा, मेन्यू के अंदर जो स्ट्रिंग लिखा हुआ था उसको प्रिंट कर रहा है। इस मुख्तलिफ कमांड्स बिल्कुल सेम टू सेम यही काम हो रहा है। उसके बाद अगर आप लाइन नंबर 285 में देखें तो वही काम
कि $40 को यानी LI $V0, ये क्या काम कर रहा है, वही कमांड वो प्रिंट करता है। ये मतलब कमांड को ये कमांड प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल है, और उसके बाद जो $A0 मेन्यू 2 है उसके ये अब उसको लोड कर रहा है, ये लोड करने के लिए इस्तेमाल है, और वो वापस वही काम हो रहा है। सेम जो ऊपर काम हुआ है वही काम नीचे हुआ, और इस तरीके से नीचे होता जाएगा। अच्छा, अब जो मैंने कमांड जो ब्लॉक ऑफ कोड जो है मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये बेसिकली ये नंबर को रीड कर रहा है जो यूज़र ने दिया है। सही है। इसमें पहली लाइन जो है LI $4, $V0, बेसिकली ये कमांड जो है वो रीड करता है इंटीजर को, और फिर सिस्टम कॉल होती है, मतलब सिस्टम कॉल कोड, ये इसका नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद फिर मूव $T0 to $V0, इसमें ये काम हो रहा है कि ये जो है गिवन जो प्रोवाइडेड इंटीजर है उसको एक टेम्परेरी रजिस्टर में मूव कर देता है। अच्छा, अब जो मैंने जो कोड हाईलाइट किया हुआ है, ब्लॉक ऑफ कोड हाईलाइट किया हुआ है, ये बेसिकली एज अ स्विच स्टेटमेंट के तौर पे काम करता है। ये करता है इस तरीके से है कि जिस टाइप का आपको वैल्यू दी जाए उस टाइप के मुताबिक उस केस पे ले जाए आपको। मकसद बता मतलब काम किस तरीके से हो रहा है यहाँ के, जो $T, अब जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेलेक्ट किया, यानी पार्क मेन्यू में अगर उसने जो मेन्यू सेलेक्ट किया है, अगर 1 सेलेक्ट किया तो मीन्स कि उसने, और जो ऊपर जो उसके सामने लिस्ट प्रिंट होकर आई उसमें उसने 1 सेलेक्ट किया, तो अब वो उसको पार्क मेन्यू पे ले जाएगा। अगर उसने 2 सेलेक्ट किया, मतलब 2 एंटर किया, तो वो सर्च पे ले जाएगा। अगर उसने 3 एंटर किया तो वो व्यू ऑल पे ले जाएगा, और अगर 4 एंटर किया तो वो कॉन्टैक्ट पे ले आएगा। ये जो बैक कमांड है ये बेसिकली ब्रांच करती है जिस केस पे आपको जाना, मतलब जो केस आपने दिया है, यूज़र ने जो वैल्यू दी है उस वैल्यू के मुताबिक जो भी प्रोवाइडेड केस होगा उस केस पे ले जाएगी, ब्रांच कर देगी। अब फिर से वही काम हो रहा है पार्क मेन्यू के अंदर के एक जो है, अगर हम लाइन नंबर 340 को देखें, वही जो ऊपर अभी हमने काम किया था कि एक LI $V0, ये वही काम करती है। ये लाइन एक कमांड जो है कमांड को प्रिंट करती है, और अगली लाइन LI जो है वो कमांड को प्रिंट करती है, और LA जो है वो कमांड को लोड करती है। तो अच्छा, हाँ, लोड करती है, और सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट करवाती है। अच्छा, यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है कोड, उसमें ये काम हो रहा है कि इसमें इंस्ट्रक्शन को प्री लोड करवाया जा रहा है, क्योंकि उन इंटीजर वैल्यूज़ के मुताबिक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में स्टोर की गई हैं। तो अगर हम लाइन नंबर 332 को देखें, तो उसमें जो कमांड है LI $T3, T3 जो है रजिस्टर का नाम है। बेसिकली क्या कर रहा है, ये फ़ौरन लोड करवा देता है वैल्यू 0 को टेम्परेरी रजिस्टर T3 में। इसी तरीके से बाकी जो मतलब इसी तरीके से जितने भी सेम टू सेम काम हो रहा है नीचे भी। इसमें फिर से अब हम अगली मेन्यू पर आ गए, मतलब जब हमने पहले पार्क मेन्यू डाला, उसमें हमने पार्क मेन्यू के बाद अब हमारे पास लिस्ट आ गई है बहुत सारी चीज़ों की। तो अब हम उस लिस्ट में से सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बर्गर डाला था, तो अब हम वही बैक का जो कमांड ही ब्रांच करता है कि जिस टाइप की इंटीजर वैल्यू आएगी वो उस केस पे ले जाया जाएगा, जो मतलब जिस केस से वो सेम है। जैसे स्विच केस में काम करते थे हम, बिल्कुल वैसे ही है कि अगर 0 है तो 0 केस पे जो भी काम हो रहा होगा उस वैल्यू पे ले जाए, मतलब उस ब्लॉक ऑफ कोड पे ले जाया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी वही सेम काम हो, इसी तरीके से नीचे भी वही काम वही। अच्छा, ये ऐड, अभी ये हमने एक नई चीज़ पर देखी, मतलब एक नया जो अब हमने अभी तक नहीं मतलब समझाया, वो ये है ऐड किस तरीके से काम करता है। ऐड इस तरीके से काम कर रहा है, जो मैंने कोड हाईलाइट किया हुआ है, ये बेसिकली 2 नंबर्स को ऐड करता है। ऐड किस तरीके से करता है कि जो $T7 ये वो है, ये 2 नंबर की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। सही है। और इसके अंदर एक और उसको असाइन किया जा रहा है 1,
मतलब इसके अंदर नंबर को मतलब जो $T7 के अंदर $T7 का जो वैल्यू को मतलब ये जो रजिस्टर है इसके अंदर वैल्यू 1 असाइन की जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद ये तो दो लाइनें हैं $V,4। बेसिकली इसमें काम ये हो रहा है कि ये जो हमने ऊपर जो एडिशन किया है इसको प्रिंट करवाना है। अब इस काम को प्रिंट करवाने के लिए हमने लिखा $V04 और ये वही काम है, ये वही कमांड है जो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाती है। उसके बाद $A0 क्वांटिटी 1 ये जो है बेसिकली लोड करता है स्ट्रिंग को और प्रिंट करता है आर्गुमेंट $A0 में फॉर प्रिंटिंग। मतलब $A0 से ये लोड करता है और प्रिंट करवा देता है। अच्छा, यहाँ जो लाइन नंबर 429 में हो रहा है बेसिकली ये मूव करवा रहा है इंटीजर वैल्यू को जो $V0 के अंदर रखी हुई है उसको टेम्परेरी रजिस्टर में $T1 में। इसी तरीके से फिर से वही स्विच के साथ गया, फिर से वही सेम काम हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, अकॉर्डिंग टू जो आपने ऑर्डर किया है उसके मुताबिक काम हो रहा है। अगर आपने बिरयानी ऑर्डर की है तो उसका सम हो रहा है। पहले मल्टीप्लिकेशन होती है उसके प्राइस से, उसके बाद फिर उसको ऐड किया जाता है आपके प्रीवियस ऑर्डर में। इस तरीके से अगर प्रीवियस ऑर्डर में 0 है तो 0 रहेगा, नहीं तो फिर जो भी आपने प्रीवियस ऑर्डर किया हुआ होगा। जैसे मैंने पहले 180 किया था, मतलब मैंने 2 बर्गर ऑर्डर किए थे, उसके बाद फिर एक कढ़ाई ऑर्डर करी थी, तो उसके मुताबिक जैसे पहले मेरा एक ऑर्डर था उसके बाद मैंने एक और मज़ीद ऑर्डर किया, तो पुराने वेरिएबल्स को भी ऐड किया जाएगा साथ में ताकि एक हो जाए। फिर उसके बाद ये जैसे हमने ऊपर बैग में हम इंटीजर, जैसे हमने ऊपर बैग में यहाँ अगर यहाँ देखा जाए तो इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यूज़ ले रहे थे, इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो अब हम यहाँ ले रहे हैं कैरेक्टर वैल्यूज़। सही है सर, दिस इज़ असद महमूद और CS181124 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैंने अपने प्रोजेक्ट में रिसीप्ट बनाने का काम किया है और नोट काउंटिंग का। सबसे पहले रिसीप्ट में हम सबसे पहले ऑर्डर आईडी का मैसेज प्रिंट कराएंगे कि आप ऑर्डर आईडी डालें और फिर ऑर्डर नेम, फिर कस्टमर नेम इनपुट देंगे और फिर उसके बाद रिसीप्ट में आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे जहाँ पे आप जिस तरह हर रेस्टोरेंट में होता है टेक अवे, डिलीवरी या डाइन इन में से आप कुछ भी चूज़ कर लें। तो अगर आप टेक अवे या डाइन इन चूज़ करते हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा सीधा नीचे, लेकिन अगर आप डिलीवरी चूज़ करते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी पे जंप होगा और यहाँ पे आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर आपका मांगा जाएगा। तो ये एड्रेस और फ़ोन नंबर लेने के बाद ये नीचे आ जाएगा, टेक अवे डाइन इन का मैंने आपको बताया, सीधा चला जाएगा। और फिर यहाँ पे सीधा प्रिंटिंग हो रही है कि वो रिसीट प्रिंट करेगा, करंट अमाउंट प्रिंट करेगा। सही है, करंट अमाउंट प्रिंट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने कस्टमर ने पैसे पे कितने किए। जिस तरह 200 रुपये का बिल बना है तो अगर आप 100 रुपीज़ डालते हैं तो वो यहाँ पे लेस देन की कमांड लगी हुई है, तो वो यहाँ लेस देन पे जंप करके आपको मैसेज प्रिंट करेगा कि आपके अमाउंट कम है, फिर से एंटर करें। तो अगर आप फिर 200 की जगह फिर आप जो भी अगर आप 200 ही एंटर कर देते हैं तो फिर वो सीधा यहाँ जंप हो जाएगा और पूरा आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा विद थैंक यू मैसेज वगैरह, मैसेजेस सारे ऊपर लिखे हुए। तो ये तो हो गया एक पार्ट। तो ये है सर चेंज का प्रोग्राम, और चेंज के प्रोग्राम में उसी तरह जिस तरह कि हमने पिछले सेमेस्टर में एक प्रोग्राम बनवाया गया था जिसमें आप नोट बताते हैं कि 1000 रुपये हैं तो 200 माइनस तो 500 का एक नोट और 100 के, इस तरह वाला वो वाला प्रोग्राम है। तो हम T8 के अंदर टोटल अमाउंट डालेंगे और फिर उसको डिव लगा के डिवाइड करते जाएंगे और प्रिंट कराते जाएंगे। सही है, प्रिंट करा के उसको फिर हम मूव करेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे T8 पे आ जाएगा और फिर उसके बाद फिर वही डिव लगाया और वगैरह ये नीचे तक चलता रहेगा। और ये नोट काउंटिंग का पूरा कोड है। तो ये 100 का नोट और 5 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, एक और दो दोनों हैं, तो ये सब पूरा नोट काउंटिंग का है। और नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पे फाइलिंग हो रही है पूरी,
जो कि मैंने ही किया है। ये पूरा ऑर्डर जो मैंने रिसीप्ट बनाई है ये उसको स्टोर कराएगा, और ये ऑर्डर आईडी वगैरह ये फाइल नेम है जिसमें स्टोर हो रहा है। तो ये पूरा वो है, यहाँ पे पूरा स्टोर हो रहा है। और आपको पता है कि हम इंटीजर को स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसको भी कन्वर्ट किया गया है पूरा डिफ का लूप लगा के। तो ये यहाँ तक। सर जो मैंने आपको बताया, मैं आपको उसका डेमो दिखा रहा हूँ कि प्लेस ऑर्डर पे गया, मैंने बर्गर ऑर्डर किया, क्वांटिटी 1 कर दी, नो कर दिया, ऑर्डर आईडी मैंने 1 2 3 डाल दी, और नेम मैंने असद डाल दिया, ठीक है। और मैंने कर दिया टेक अवे के लिए, और मेरा अमाउंट आ गया 180। अब मैं दे रहा हूँ इसके लिए 500, सही है। तो ये नोट्स आ गए कि मुझे इतने वापस होने चाहिए इस नोट से, और बाकी ये सब कुछ सेव हो गया होगा एक फाइल में। Assalamualaikum. This is the Nilesh Kumar from CS181034, my roll number. Today we presenting food management system. Our project is food management project. Today my topic is searching, view all, and contact us. So let's begin now. This is our project, and I am starting from searching. So लेट्स बिगिन global सर्च। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट है, और LI-V0 लोड LI का मतलब है यहाँ पर लोड इमीडिएट, और LA का लोड एड्रेस LI$V04 LA$A0 सर्च सिस्टम का। यहाँ पर हमारा मैसेज प्रिंट होगा एंटर आईडी, और LA लोड एड्रेस $A0 ID, और यहाँ पर हमारी आईडी इनपुट मांगेगा। V08 में हमारा करेक्टर इनपुट होगा। रीडिंग ऑर्डर फाइल, यहाँ से हमारी रीडिंग फाइल से रीडिंग करना शुरू करेगा, ओपन करेगा फाइल को। LI$V0 सेटिंग का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ से ओपन फाइल करे, जैसे हम सी में फाइल का पाथ देते थे, और यहाँ पर हमने लोड एड्रेस में A0 को, फाइल नेम 2 को पाथ दे दिया है। ऊपर ही हमारा ये पाथ है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यूजर डॉट टेक्स्ट और रिकॉर्ड का हमारे पास है। यूजर में हमारे पास जो भी साइन अप करेगा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, और रिकॉर्ड में हम जो भी इनपुट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। तो वी विल डिस्कस फ्रॉम हेयर एंड हेयर रीडिंग फाइल, और लोड एड्रेस में फाइल 2 और A1 में फाइल फ्लैग हो रही है, सिस्टम कॉल हो रहा है। V0 को S0 में मूव करा दिया, फाइल की डिस्क्रिप्शन करी, और यहाँ से LI$V014 पे हमारी फाइल रीड हो रही है, सिस्टम कॉल हो रहा है, और फाइल वर्ड्स टू A1 में बफर हो रहा है, और यहाँ पे हमारा सिस्टम कॉल हो रहा है। और ये हमने कमेंट भी कर दिया है ऊपर वाला कोड, और फिर यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट है, और यहाँ से हमारा जो भी हम आईडी देंगे 10, मतलब जो भी हमारे पास आईडी हो वो हम उसको वहाँ पर आईडी देंगे, वो यहाँ से सर्चिंग करेगा। पहले सर्च का लूप चलेगा यहाँ पर, तो S1 को बाइट्स में T1 में बाइट्स में दे देगा, और यहाँ पर हमने 2 लूप लगाए हैं, B greater than equals to और B T1 नेक्स्ट लाइन ब्रेक 1 T1 greater in इक्वल टू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमारा सर्च का लूप ये हमने यहाँ पर एडिशन किया है, S1 में 1 किया है, और भी सर्च लूप में चल रहा है। फिर ब्रेक आ रहा है, ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर T1 न्यू लाइन प्रिंट कर दे तो ठीक, नहीं तो इसमें आ जाएगा। फिर आईडी देखेगा सर्च टू, फिर एडिशन होगी परफॉर्म, फिर लोड बाइट में का S1 को T1 में, S2 को T2 में दे देंगे, और B not equal to T1 $T1 $T2 अगेन यहाँ पर का ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू वेयर कर रहा है, और यहाँ पर एडिशन S1 में S2 और +1 होके S2 में सब वैल्यू आ रही है, T3 की +1 से T3 में सेम वैल्यू आ रही है। यहाँ से फिर B लेस देन इक्वल टू, फिर T3 को 4 से अगर लेस देन है तो फिर
यहाँ से एडिशन परफॉर्म करे, जो ग्रेटर 4 से ज़्यादा है तो फिर सर्च2 इधर इसमें चला जाए, सर्च2 में। तो यहाँ पर अभी प्रिंटिंग है और $S1 को T1 में बाइट में कन्वर्ट कर दिया है और V011 में कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है और एडिशन हो रही है यहाँ पर V इक्वल टू, फिर प्रिंटिंग हो रही है, फिर सर्चिंग फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, यहाँ पर सर्चिंग हो रही है सारी ऑर्डर आइटम की और नॉट एग्जिस्ट। अगर जो हमारा क्या कहते हैं ऑर्डर आईडी गलत होगा तो फिर एरर का मैसेज प्रिंट कर देगा। ये हमने मैसेज का प्रिंट का वो लगा दिया है सबको, LI $V04 पे से मैसेज प्रिंट कर देगा और यहाँ से हमारी फाइल क्लोज दी फाइल। जब हमें ऑर्डर आईडी दे दी तो हमें जो इनपुट दिखाएगा, सारा इनपुट जो हमने इनपुट दिया है वो हमें दिखाएगा उसका ऑर्डर दिखाएगा, क्या क्या उसने लिया है, कौन सा नाम है, किसका नाम है, कितने का ऑर्डर लिया है, डाइन इन किया है, टेक अवे किया है, जो भी किया है वो हमको दिखाएगा। फिर यहाँ से LI V016 लिखेंगे और यहाँ पर हमारा जब लूप आएगा तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी S0 से और S1 दोनों से, डिस्क्रिप्टर दोनों फाइल हमारी क्लोज हो जाएंगी। फिर गो बैक प्लीज अगेन तो मैसेज होगा, फिर करेक्टर दोबारा हमसे लेगा कि फिर आप क्या करना चाहते हैं, प्लेस ऑर्डर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये और हमारा ये व्यू वाले हम आपको सर्चिंग का दिखाते हैं कि सर्चिंग कैसे काम कर रही है इन रनिंग प्रोग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा चल रहा है प्रोग्राम। तो अभी मैं पहले करूंगा साइन अप। तो अभी मैं आईडी दे रहा हूँ यहाँ पर, अभी यहाँ से लॉगिन लूंगा। यहाँ देख रहे हो प्लेस एनी की टू गो मेन मेन्यू, अभी ये हमें मेन मेन्यू में लेके जाएगा। मैं प्लेस ऑर्डर कर रहा हूँ, यहाँ से आप कोई भी आइटम उठा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैंने फर्स्ट करो 4 आइटम है, चिकन निहारी, क्वांटिटी है 2 और आपसे पूछ रहा है आपको और कोई आइटम चाहिए, आप नो चाहिए तो यस करें, नहीं चाहिए तो नो कर दें। फिर आपसे ऑर्डर आईडी में गया, ऑर्डर आईडी हमारे चल रहा है 109। तो अभी नाम है नीलिश। ये हमसे पूछ रहा है आप टेक अवे करेंगे, डिलीवरी करेंगे, डाइन इन करेंगे। मैं कह रहा हूँ मैं टेक अवे करूंगा। मेरा 500 रुपये हो गया, मैंने उनको 1000 रुपये दिया, ये मेरे चेंज देंगे। और ये अभी सर्च ऑर्डर होगा, सर्च ऑर्डर पे ऑप्शन 2 है, 2 पे दें और 109 जो हमने इनपुट किया था ये हमारा आ गया। और हम ऐसे हम सर्चिंग करेंगे तो हमने पहले जो इनपुट दिया है 106 क्या 10 जो भी होगा हमसे हमें इनपुट देगा वापस। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं 10 यहाँ पर सर्चिंग वाली सर्च कर रहा हूँ, ऑर्डर 101 डाल रहा हूँ तो हमारे पास ये ऑर्डर आ रहा है। अभी मैं आपको व्यू ऑल का दिखाऊंगा। अभी हम आपको व्यू ऑल पे लेके चलेंगे और ये देखिए आप व्यू ऑल का मेरा जो है LI V0 हमने जो ऊपर काम किया था फाइलिंग वाला, यहाँ पर हम पहले फाइल को ओपन करेंगे LI $V013 से और LI $V014 से हम इसको रीड करवाएंगे पूरी फाइल को। और यहाँ से LI $V016 से फाइल को क्लोज कराएंगे डिस्क्रिप्टर से। और यहाँ पर 2 न्यू लाइन प्रिंट हो जाएंगी उसके बाद, और सारी हमारी डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर इसमें चली जाएगी स्पेस हो हमारे पास 1024 और यहाँ पर सम प्लीज गो बैक वाला जो प्लीज एंटर एनी की, और यहाँ पर हम इसे मेन मेन्यू में चला जाएगा। और ये हमारे पास कॉन्टेक्टर्स का भी ऑप्शन है, हमने ये कॉन्टेक्टर्स मैसेज प्रिंट करवाए हैं सारे $V04 में। ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ कॉन्टेक्ट वगैरह की लिस्ट, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने कॉन्टेक्ट ऐड करवाए हैं कि जिसको भी ज़रूरत हो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए या किसी के लिए ऑनलाइन नहीं तो ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए हम कॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास जो ग्रुप मेंबर्स हैं। फिर से हम इसको रन करते हैं और इस प्रोग्राम को चलाते हैं और हम व्यू ऑल और फिर से हम लॉगिन करते हैं
मैंने अभी पहले ही मैंने आईडी बना के रखी थी। आपको मैं दूसरी आईडी से ये हमने व्यू ऑर्डर कॉल किया तो हमारे पास सारे ऑर्डर व्यू हो गए। फिर हम 4 पे जा रहे हैं और ये हमारे पास जो भी है कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट आ रही है। फिर हम क्लोज कर रहे हैं। फिर जो मैंने अभी दूसरी आईडी नहीं बनाई थी, अभी मैं उससे रन करूंगा इसको। तो जो मैंने अभी यहाँ पर ऊपर आईडी बनाई थी नीलेश के नाम से, ये हमारे पास आ गया। फिर से हम इसमें भी ये हमारे पास सारी लिस्ट आ गई कि कितनी ऑर्डर हमारे पास है, कितना उनका अमाउंट है, डायनेमिक या टेक अवे गया है या डिलीवरी गई है। तो अभी फिर कॉन्टेक्ट इसका, तो दैट इज आवर प्रोजेक्ट एंड फर्दर आई make project report and that is our project. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. This is our project. Thank you. Allah Khuda Hafiz.